हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं बेफिक्रे। और आज मैं अपनी सिस्टर के घर आ चुकी हूँ। मुझे अपनी सिस्टर का इंटीरियर डेकोरेशन बहुत सुंदर लगा, तो मुझे लगा कि मैं भी अपने व्यूअर के पास आप लोगों को दिखाऊं कि इतना सुंदर उन्होंने घर कैसे डेकोरेट किया है, और मैं सिस्टर से भी मिलवाती हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरी फैमिली से मिलें आप लोग। दी, एक बात बताओ मुझे, जितना मुझे पता है आप तो एस्ट्रोलॉजी में हो, भैया, तो आपको पेंटिंग वगैरह और इतनी सुंदर पेंटिंग बनाने का कैसा मतलब आइडिया आया? क्या आपकी क्या इंस्पिरेशन है? वेल थोड़ा बहुत तो देखो, सिंस मैं चाइल्डहुड में बनाती थी अपनी पेंटिंग, उसका शौक था और हमेशा से घर मुझे हमेशा से अट्रैक्ट किया था। और जब अपना घर लिया और उसके बाद देन आई थॉट कि इससे पहले धीरे धीरे पेंटिंग्स बना रही थी मैं एक्चुअली, और आई डू वास्तु आल्सो एंड एस्ट्रो आल्सो, सो दिस हाउस इज बीन क्रिएटेड बाय putting all that aspects कि अगर आपकी entrance है तो what is actually, because I don't believe in general vastu or astrology. I do personal things, so personal vastu, personal astrology. So however it's like, as we bought this, like it's been I and my husband, so I have seen that what aligned both. So the entry is that way, then this is the north corner where water flowing paintings, this come and see. This is what I love. If you see from far away ना, तुम्हें ये लगेगा as if it's a waterfall है। तो it's like painting, it's something, जब आप नेचर से बहुत अट्रैक्ट होते हो और आपको समझ आता है कि when you go to the galleries, actually very honestly, हाँ, तो वहाँ you find paintings were really expensive, but as if you are good in painting, good in arts basically, so you thought of why not using your creativity on the canvas. तो मुझे लगा कि धीरे धीरे gradually एक के बाद but it's just a journey. It is not an ek din mein nahi hua. It's not an overnight thing, but yes, very gradually I've started doing and enjoying, though I have my family, maintaining a balance between my kids, my home, my family, my husband. But yes, this is what passionate me, and everybody encouraged me to do this whenever I have my own time. So but really people have appreciated, and the best part is you guys loved it. Yeah, exactly. And तुम लोग अपना इसमें बेफिक्रे में दिखा रहे हो, that's really a proud feeling for me कि at least I would be there, like people would be knowing, maybe people would be acknowledging and appreciating of मेरा भी यही था कि doing. at least हमारे व्यूअर्स को थोड़ा पता चले कि कैसे आप लोग। Yes, I have, like, this is a Pichwai painting, and we have put a stories, like it's like a Vrindavan kind of thing. This is a brushel. This is, I got inspired by one of the postcard. I was in the Insta and just I gave a glance and I really found it beautiful. And this was basically the electric board wala, and it was actually looking very odd, very odd. Yes. So this is all modern. This is this is basically some of the DIYs I did. So बस छोटा छोटा सा घर, I believe कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपेंसिव चीज़ों पे ना खर्चा करके whatever you have and try to try to create it in a better ways or reuse it better, paint करके, or maybe there are lot many things you can do with whatever you have. These are the collection of Buddhas I have. I've been and this is what I love the most. These are the beautiful flowers that you gave me. And I think it is making my living room look more beautiful. So this is joint contribution. It's like some being DIY, some being gifted, some being this, some being taken from my mother also. But whichever thing I found can be repurposed, redecorated, I always use it, give it a reshape kind of thing. So Divya, did you remember this was a chest that we had in our bedroom? Yes. Previous yes, flat. Yes. When we were on rent. So when we came here, so I found this floor tile that we got it done by our own. So I just wanted कि ये जो color contrast है, it looks more brighter. It was more red. So I did this, and this was also by DIYs. That was the lamp that you gifted me, and as we were on rent, so the movement say it just ये वाला जो shade था just broke. So yes, this was my DIYs. Very creative. Thank you. And did you notice these stones?
This is the collection. We got it from Nainital. This is a place Almora, and this is a beautiful stone which shines. Yes, it has got mica on it, so it looks really pretty. So it's all collectibility, and this is yours. Painting which I was, it reminds me of my childhood. Remember when we were young, और उस समय कितने बटरफ्लाइज और अलग अलग तरह के फ्लावर्स स्प्रिंग में होते थे, तो आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन माय बैल्कनी एंड जस्ट एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जहाँ पे हैं, ये लेटेस्ट हमारे पे यस, तो इसमें बटरफ्लाइज एंड ऑल दैट फ्लावर्स आर पॉपिंग अप, इट रिमाइंड्स, बिकॉज आज के टाइम में देयर लॉट मेनी प्लेस वे आपको बटरफ्लाइज नहीं मिलेंगे, बट लकीली वी कैन सी इट सम ओवर हियर, बट यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, बट यार बहुत सारे कलर्स की होती थी, इट अट्रैक्ट्स मी अ लॉट, सो इट्स ऑल अबाउट नेचर, इट्स ऑल अबाउट नेचर. So this is our kitchen. Most of the time, right? Yes, I am always here. So I wanted, my kitchen should look a little bit prettier. Though not very pretty, it's like something very functional. So this wall is, Yeah, this is very attractive wall. Yes. It actually, breaking the monotony of the kitchen, because everything is white. Because क्या होता है आजकल फ्लैट्स में स्पेसेस आर वेरी लाइक स्पेसेस आर लेस, सो जस्ट टू शो दैट वाइडर पिक्चर, शो टू गिव अ वाइडर पिक्चर, वी नीड समथिंग, वी वर्क ऑन द वाइट्स, सो एवरी रूम इज आर वाइट्स, सो दैट वी कैन पॉप अप विथ लॉट मेनी अदर कलर्स, सो दिस इज लाइक समथिंग सिंपल, वेरी सिंपल. और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आपने मेरी सिस्टर का ये पूरा अच्छा से घर देखा, इनको इंटीरियर के साथ साथ जो इनका प्रोफेशन है वो एस्ट्रोलॉजी में है, तो इनफैक्ट मैंने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है. बहुत बार मेरे पास टाइम मैं आई वाज वेरी अपसेट और कुछ मेरे पास कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो मैं दी से डिस्कस करती थी और उन्होंने इतना एक्यूरेट बताया मुझे कि मुझे खुद लगा कि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है तो आप लोगों भी कभी इनको कांटेक्ट करें, और मतलब इनसे जो भी आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या बहुत ही एक्यूरेट मुझे उनके आंसर्स मिले. तो थोड़ा सा दिया बताओगे कि आपका प्रोफेशन एज एस्ट्रोलॉजी है, एज एस्ट्रोलॉजर हो, तो आपको अगर मेरे व्यूज़ को कांटेक्ट करना हो तो कहाँ पे कांटेक्ट करें आपसे? मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट वो लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं. एग्जैक्टली, मतलब मैं अपना जो नंबर है और मे बी द ईमेल आईडी आई वुड बी गिविंग इट टू योर बेसिक वे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे. इवन आप इंस्टाग्राम का भी हमको आईडी डाल देंगे, तो आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है ये तो बहुत ही पुरानी चीज़ है, मतलब एंशिएंट है. हाउएवर जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक जो एस्ट्रोलॉजी होती है इसमें आपका जो बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, वेरी साइंटिफिकली कैलकुलेशन और इंस्टिंक्ट, बिकॉज इंस्टिंक्ट इज समथिंग विच मेक्स योर प्रेडिक्शन एक्यूरेट एंड विच एक्चुअली इफेक्ट्स द अदर पर्सन हु इज एक्चुअली आस्किंग कमिंग अप विद द प्रॉब्लम. सो मैं पहले बहुत टाइम से आई बीन डूइंग इट, इट्स लाइक कुछ हुआ, आई बीन लाइक अरे नहीं ऐसे नहीं होगा, तुम अब जाओ अब करो, इट्स लाइक आई बीन सीइंग कि मतलब वो चीज़ें होती थी. सो आई मतलब अब मैंने पढ़ना वढ़ना स्टार्ट किया कि ये क्या है, वाई आई मतलब मैं अपनी प्रेडिक्शंस दे देती हूँ कि भाई ऐसे कर लेना वैसे कर लेना. देन ग्रेजुअली मतलब मेरे को समझ आया कि एक एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस विच जो मतलब इट्स अ गॉड गिफ्टेड. आप ऐसे नहीं, आप मतलब हर बंदा कर सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर आपकी प्रेडिक्शंस आ रही जो सही हो रही हैं और प्रेडिक्शंस है एक्यूरेट, और मे बी आप उनको आपके जो सोल्यूशंस हैं आप जो भी कह रहे हो, इफ़ दे आर डूइंग इट विद द अर्नेस्ट डिज़ायर्स एंड विद द अर्नेस्ट एफर्ट्स, उनका रिजल्ट आ रहा है. तो दैट इज वो मैंने खुद फील किया कि काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि काफ़ी एकदम एक्यूरेट मुझे इसका आंसर्स मिले हैं, और कब होना है वो भी मैंने खुद, मुझे पता है. मुझे एक बार मतलब मैं आई जस्ट लॉस्ट माई जॉब, मुझे दी ने बताया था कि तुम्हें इस मंथ में मिलेगी. आई रिमेंबर इवन आई प्रेडिक्टेड फॉर माय हस्बैंड आल्सो. इनिशियली कहते ना वो उन्होंने इवन ही नेवर, उनको भी लगता था कि अरे ठीक है ऐसे बोल देती है. जब एक दो बार चीज़ें हुई हैं एंड इट हैपेंड व्हेन ही वाज इन द लास्ट जॉब. अभी रिसेंटली ही चेंज हिज जॉब एंड इट जस्ट हैपेंड. मैंने कहा ठीक है आप इस टाइम तक हो जाएगा. स्टिल ही वाज लाइक अरे नहीं हुआ, अरे हो जाएगा, एंड इट हैपेंड. तो जब चीज़ें होती हैं आपकी प्रेडिक्शन, और जब लोग आपके पास सोल्यूशन आपकी जो सॉरी एडवाइजेस हैं, तो उनको जो वो काम करते हैं, बिकॉज आपका काम है एस्ट्रोलॉजर का काम है आपको सोल्यूशंस देना, आपको गाइडेंस देना. देखिए डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर कोई कुछ नहीं, बट आप अपनी डेस्टिनी को फॉलो कर सकते हो.
आप अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हो उस चीज़ को करके जो आपके लिए बनाया गया है. दिस इज़ वॉट आई बिलीव, दिस इज़ वॉट आई टेल पीपल टू डू. और बहुत मतलब प्रैक्टिकल होके जो चीज़ें होती हैं और जो चीज़ें नहीं हो सकती आप उसके पीछे ना ही दौड़े, उतना अच्छा है. You're just wasting your time running after those things which are not in your destiny. So मेरे लिए what is important is कि आपको एक सही राह दी जाए, वो राह जो एक बच्चों के लिए. Astrology is really important for the kids, for the children. बहुत से केसेस होते हैं बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आप पेरेंट्स नहीं समझ पाते किस तरह से करेंगे, तो उनकी कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ है जो उनके लिए आगे बेनिफिशियल है. और मैक्सिमम इंडिया में देखा है लोग, पीपल आर प्रेशराइजिंग, अरे तुम इंजीनियरिंग करो, बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, और उसकी जो डेस्टिनी है इट्स लाइक डाइवर्टिंग हिम, मेकिंग हिम, पुशिंग हिम टुवर्ड्स द स्पोर्ट. बट नहीं, पेरेंट्स आर पुशिंग हिम टुवर्ड. तो क्या होगा एंड ऑफ द डे, ना वो बेचारा ना वो स्पोर्ट्स कर पाया, ना उसकी मतलब इंजीनियरिंग या कुछ भी चीज में वो इंटरेस्ट नहीं हुआ, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ फोर्सफुल फॉर द मैं ये मानती हूँ कि बेस्ट पार्ट इज दैट व्हेन आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को व्हेन यू काउंसिल, यू कम टू नो कि बच्चे का सही और गलत क्या है. क्योंकि एक बार जब करियर का पाथ आपका चेंज हो जाता है और मे बी आपने उस पीक ईयर्स को आपने उसको मतलब इग्नोर कर दिया और मे बी आपने उस पर फोर्स कर दिया, तो उसका वो मतलब अपना जो आपका करियर है उसका वो नहीं बन पाएगा. तो मेरे ख्याल से चाइल्ड काउंसलिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो आपके क्ले की तरह है जो आप कहीं भी मोल्ड उसे कर सकते हो. और द बेस्ट गाइडेंस, मोल्ड योर चाइल्ड, मेक्स द फ्यूचर मोर ब्राइटर. मैं बस एक बहुत प्रैक्टिकली मतलब आई जस्ट बिलीव कि थिंग्स शुड बी वेरी प्रैक्टिकल विच इज लाइक बीइंग डन. हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं बेफिक्रे. और आज हम नया एपिसोड लेके आ गए हैं बातें विद बेफिक्रे में, जहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपनी सिस्टर से. तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं और मिलते हैं मेरी सिस्टर से. और आज का ये चिट चैट हम यहीं पर ही एंड करते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा होम टूर. और अब हम बात करते हैं कि हम दी से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं. दिव्या, मैंने अपना नंबर तुम लोगों को दे दिया है. आप अपना मेरा नंबर अपने फ्लैश कर सकते हैं. और किसी को भी कोई मतलब एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन चाहिए हो, यू गाइस कैन कॉल मी और यू कैन ईमेल मी एंड आई एम रेडी टू गिव माई सर्विसेज. और ऐसा कुछ क्या बोलना, कॉस्टली तो नहीं है ना? हाँ, द प्राइजेस आर रियली अफोर्डेबल एंड I hope so, and I'm always there to help you guys. मैं भी उम्मीद करती हूँ कि डेफिनेटली काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो परेशानी में होते हैं बट वो इतने ओपन अप नहीं हो पाते. तो मे बी वो हमारा ये बातें विद बेफिक्रे का देखें और उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही हो रिलेटेड सम वास्तु, सम लाइक जो नए घर में कभी शिफ्ट होते हैं या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू विकास, थैंक यू दिव्या.